We'll be telling you about all of that. To all of you, I welcome you all to my gun position. As you can see, there are 6 guns which are deployed in this particular gun position, and on to my right is the state-of-art command and control center, which is equipped with latest technology which is used to direct artillery fire. As part of Sindoor, we were well prepared and well trained to bring down effective fire onto the enemy and execute the fire mission. Indian Army has effectively engaged terrorist hubs and terrorist camps into the Lipa and Neelam Valley. Pakistani Army then tried to engage on military camps as well as gun areas, in which they were unsuccessful and their fire was quite ineffective and inaccurate. Then, out of frustration and pressure, they started engaging our civilian areas in this particular sector, such as Chokibal, Tangdhar, Tregam and Panchgam. Indian Army then took a retaliatory measure and brought down effective fire onto their gun areas as well as military camps which were sponsoring and harboring the terrorists. Indian Army is standing strong and is forever ready to give any such befitting reply in future to our adversary. Now you shall be demonstrating a basic gun drill which is used to fire a gun. Dipyo, take charge. Fire the artillery onto the enemy. Alright? So we'll begin with the next part. Okay. So what I can recommend is you can still come to your right. All of you will get 3 guns each. Just come to your right. There's enough space. और इस वक्त सामने वाले दुश्मनों को एंगेज किया जाता है। तस्वीरों को आप देखिए, भारतीय सेना के जवान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और जैसे ही पता चलता है कि सामने से किसी भी तरीके और एंगेज करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो सामान है या फिर जो वेपन है कार्रवाई होती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पर लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा था कि हमारी सेना के जवान जो वहाँ से हमले किए जा रहे थे उसको नेस्तनाबूद किया था। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसी लोकेशन से चैन से थोड़ा पीछे मैडम थोड़ा पीछे इधर को आके साइड में ये हमला मिलने की इंफॉर्मेशन जानकारी मिल रही है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं Elevation 3-4 degrees 0. 3 round gunfire reported up. Get up! Get up! One up! Get up! Number 4 up! Fire! Three round gunfire. Three round gunfire.
All number 1, data on CDU, 3 rounds confirmed. आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक इतिहास से एक किस्सा उठाते हैं। एक बहुत उम्दा मिलिट्री चलाते हैं, सीज फायर का वायलेशन करते हैं। Closer command post. अधिक कमाल करते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि तैनात रहते हैं। नमस्ते, लीडर टॉप देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी मान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जब उन्होंने सीज फायर वायलेशन किया ऑपरेशन। रेडी? ओके ओके, आई ट्राई। ओके, जय हिंद। सर प्लीज 1 मिनट। Let's roll. What happened? We are starting 3, 2, सर आप हो गया आप वहाँ से ओके, ऑल सेट। सर हिंदी में बोलिएगा सर। हिंदी में भी बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे। ओके, रेडी? ओके, जय हिंद। एंड मैं आप सबका इस गन एरिया में स्वागत करता हूं। द रिसेंट ड्रिल विच यू जस्ट सॉ, इट वाज अ drill in which we engaged the enemy targets. As part of the Op Sindoor, we had used the same drills which we had practiced before, and during the operation we put it into effect to target the enemy launch pads in the Lipa and the Neelam Valley. As you are aware, there were clear aim to engage the enemy terrorist infrastructure, and the same was done accurately by the artillery of this formation. But the enemy, seeing the engagements of the terrorist launch pads, also started engaging, but his engagement was quite inaccurate. Because of this, he thereafter started engaging the civilian villages in our AOR, like in Tangdhar, in Chaukibal, Tregam. Because of this, we had to engage their enemy gun areas and also the enemy posts which were assisting in infiltration. All this was done with very accurately and effectively, and all the training which we had done before the operation, that was put into use. For getting this fire onto the enemy, we have used lot of new techniques which were put into effect, and all the new generation equipment which we have been getting, they were used for the effective engagement of the enemy. The morale of the enemy has been quite low, and we have been getting the intercepts that they are very disorganized and they are looking for cover. This is a huge victory for our armed forces, and we are very glad that we were able to form a part of Operation Sindoor and contribute to the national effort. Thank you. गन एरिया में जो ड्रिल देखा है, ये एक ड्रिल है जो हम यूज करते हैं टारगेट्स को इंगेज करने के लिए। ये ड्रिल जो है, ये बहुत ही रिहर्स्ड ड्रिल है जिसकी हमने काफी प्रैक्टिस करी है और
इसको हम बहुत ही एफिशिएंटली करते हैं। एज पार्ट ऑफ सिंदूर जब हमको बताया गया कि हमें टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर LOC के पार इंगेज करना है, हमारे प्लान्स रेडी थे और हमने दिए हुए टाइम पे उन सबको इंगेज किया। जब दुश्मन ने ये देखा कि हम बहुत ही एक्यूरेटली उनको इंगेज कर रहे हैं तो उन्होंने कोशिश करी कि वो हमारे गन एरियाज पे फायर डाले, बट वो नाकामयाब रहा और उसकी फायर बिल्कुल इनएक्यूरेट थी। ये देखते हुए उसने उसके बाद हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं जैसे कि तंगधार, त्रेगाम, पंचगाम, यहाँ पर फायर करना शुरू किया। इसके लिए हमको जबरदस्ती जो उनके गन एरियाज हैं उसको इंगेज करना पड़ा, क्योंकि पहले हमने उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंगेज नहीं किया था। बट जब उन्होंने हमारे सिविल एरियाज इंगेज किए तो फिर हमने अपनी गन से सभी गन एरियाज से उनके गन एरियाज इंगेज किए और उनकी जो एनिमी पोस्ट हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन में असिस्ट करती हैं उसको इंगेज किया। ये इंगेजमेंट बहुत ही एक्यूरेट था और इस इंगेजमेंट में दुश्मन को बहुत सारी हानि हुई है। ये हमको इंटरसेप्ट भी मिले हैं जिसमें उसका बहुत ही नुकसान हुआ है और उसके मोराल पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। इस फायरिंग के दौरान हमको अपने ड्रिल के हिसाब से हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और दुश्मन की फायरिंग में हमको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हमारे सारे इक्विपमेंट और जवान सही सलामत हैं और जो नुकसान हुआ है वो दुश्मन का हुआ है। इसके बाद हम अभी किसी भी फायरिंग के लिए हम एकदम तैयार हैं और जो भी हमको आदेश मिलेगा हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। सेम थिंग। अच्छा, ओके। बताइए जो ऑपरेशन सिंदूर ओके है उसके बारे में। सो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमने दुश्मन के जो सबसे पहले टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारा एम था उसको हमने इंगेज किया और उसको बर्बाद किया। इसके बाद क्योंकि हमारी फायरिंग बहुत ही एक्यूरेट थी तो दुश्मन ने चाहा कि वो हमारे गन एरियाज को इंगेज करे, बट उनका जो फायरिंग था वो इतना एक्यूरेट नहीं था और हमारा जो प्रिपरेशन था वो बहुत ही अच्छा था, तो हमको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये देखते हुए दुश्मन ने हमारे सिविलियन एरियाज में फायरिंग करनी शुरू करी जिससे कुछ एक सिविलियंस को नुकसान पहुंचा। इसके अंतर्गत हमने प्लान किया कि हम दुश्मन के गन एरियाज को इंगेज करेंगे ताकि वो हमारे सिविलियन एरियाज को इंगेज ना कर सके। तो हमने उनके गन एरियाज को इंगेज किया, उसको बर्बाद किया और उनकी जो LOC पे जो पोस्ट हैं जो इन्फिल्ट्रेशन को असिस्ट करती हैं उसको इंगेज किया और उनको भी बर्बाद किया। इसके बाद हमें पता चला है कि दुश्मन का मोराल बहुत ही डाउन है और उसको बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और हानि हुई है। इसके बाद जब से फायरिंग में रोक आई है उसके बाद हम अपनी तरफ से पूरा तैयार हैं और इसके बाद कभी भी जब भी हमको ऑर्डर्स मिलते हैं हम फायरिंग के लिए तैयार हैं। तो क्या हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रही है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने बहुत टेक्नोलॉजी अभी इंडक्ट करी है जो कि हम यूज कर रहे हैं। इस फायरिंग में भी हमारा जो एक्यूरेट फायरिंग था वो इसी की वजह से था कि हमने काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अपने इनकॉर्पोरेट करी है और हमने यूज करी है। आगे भी पूरी तैयारी है। जैसे आपको पता है ये अभी जो पूरा डिकेड है ये ट्रांसफॉर्मेशन का डिकेड है इंडियन आर्मी में, तो इसमें जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है हम उसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं। From the 23rd of April, the way ceasefire violation, the 7th of May when India started. झंडा नहीं खुला सर, झंडा नहीं खुला।
आर्टिलरी गन के साथ हमारे बहादुर जवान के साथ इन्होंने पाकिस्तान को किस तरह से अपने शौर्य और अपने पराक्रम को दिखाया है। तिरंगे के अपने आर्टिलरी गन के साथ इन जवानों का जज्बा देखने बनता है। यही शौर्य का पराक्रम जल्दी गो गो भारत माता की भारत माता की भारत माता की चलो गाइस, लेट्स गो बैक। थैंक यू।